गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आप लोग सब कैसे हैं और आप लोगों ने वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। आपको अपनी नोटबुक को भी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है उसको आप कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो करवा दिए हैं। तो आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी बुक में भी आपको कंप्लीट करना है नोटबुक के साथ साथ में। ओके तो अभी हमने जैसे हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोग नंबर स्पेलिंग्स लिख रहे थे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक की हमारी हो गई थी। आज हम लिखेंगे सैटरडे संडे, सॉरी हमने मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट किया है, अब हम करेंगे सैटरडे एंड संडे। सो टेक आउट योर नोटबुक एंड यू हैव टू राइट विथ मी। आपको प्रॉपर हेडिंग प्रॉपर डेट डालना है और मेरे साथ में आपको स्पेलिंग लिखना है सैटरडे की। ओके So here 6 number you have to write here, then you write the spelling of Saturday, S-A-T-U-R, Saturday. And what is the spelling of day? D-A-Y, day, Saturday, S-A-T-U-R, Saturday, S-A-T-U-R, Saturday, S-A-T-U-R, Saturday, D-A-Y, day, Saturday। आपको यही वाली स्पेलिंग जो है पूरी रिपीट करना है फुल पेज। ओके Saturday, D-A-Y, day, Saturday, S-A-T-U-R, Saturday, D-A-Y, day, Saturday. Then number 6, Saturday, S-A-T-U-R, Saturday, D-A-Y, day, Saturday. S-A-T-U-R, Saturday, D-A-Y, day, Saturday. Okay, now complete this spelling by saying you have to complete the spelling. Once again, repeat after me and then you write S-A-T-U-R, Saturday, D-A-Y, day, Saturday, 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 S-A-T-U-R, Saturday, DIY day Saturday. Okay, now
the spelling of Sundays. Okay, Sunday fun day. Okay, you are enjoying Sunday with your parents na at your home. Your father is also not going to office or on shop, so he is also with you on that day. So you are enjoying with your family on Sunday. So Sunday is a fun day for you. So you are going for picnics also. Okay, so Sunday, we will write the spelling of Sunday here. So write number 7. So there are 7 days in a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So 7 days Sunday. So here we write the spelling of Sunday. S-U-N-D-A-Y. Sunday. So Sunday is a fun day for you. So S-U-N-D-A-Y. Sunday. S-U-N-D-A-Y. Sunday. S-U-N-D-A-Y. Sunday. S-U-N-D-A-Y. Sunday. S-U-N-D-A-Y. Sunday. Okay, so S-U-N-D-A-Y. Sunday. S-U-N-D-A-Y. Sunday. S-U-N-D-A-Y. Sunday. S-U-N-D-A-Y. Sunday. Okay, now write this. Okay, so here we had completed spellings from Monday to Sunday. So there are 7 days in a week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So we had written the spellings from Monday to Sunday and we had read the spellings also. So now it's your turn to learn the spellings. Okay, so now we will do some exercise related to this डेज ऑफ द वीक. तो आपको मेरे साथ में वो एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, कुछ मैं क्वेश्चंस आपको लिखवाऊंगी. इस एक्सरसाइज पे बेस आपको क्वेश्चंस लिखना है. ठीक है,
Okay, now number one, HOW, how. How मतलब कितने, how many, 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 how many days are there, THERE, there in a week, WEEK, okay, question mark. कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, सो आवर आंसर इज देयर, THERE, देयर आर 7 days in a week, full stop. कितने डेज होते हैं एक वीक में, सो देयर आर 7 days in a week. ओके, ये आपको लर्न करना है बेटा, है ना। ये सेंटेंस तो हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि अभी आप छोटे हैं, बट आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करते भी आ जाएगा कि क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हम कैसे लिखते हैं। तो हमने देखो क्वेश्चन में से ही आंसर उठा लिया, देयर, देयर के बाद क्या है, देयर इन अ वीक, तो हमने लिख दिया देयर आर 7 days, देयर वैसा कि वैसा, देयर आर 7 days इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ओके, वन टाइम सिर्फ आपको ये लिखना है। नंबर 2, what comes मतलब क्या आता है, what comes before मतलब पहले, what comes before Tuesday, क्या आता है ट्यूसडे के पहले, कौन सा वार आता है, what comes before Tuesday, so our answer is Monday, Monday comes before Tuesday, so our answer is Monday, 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 what comes before Tuesday, so Monday, answer is Monday, 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 this is our answer, this is our answer. ओके, कि ट्यूसडे से पहले कौन सा वार आता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए किसके पहले कौन सा वार आता है, किसके बाद कौन सा वार आता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो हम बता देंगे। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि अच्छा बताओ ट्यूसडे से पहले क्या आता है, वेडनेसडे से पहले क्या आता है, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए, आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसके पहले कौन सा वार आता है, किसके बाद कौन सा वार आता है, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ट्यूसडे से पहले कम्स, व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर मतलब पहले, बिफोर ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के पहले क्या आता है, मंडे आता है ना, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे आता है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं, व्हाट कम्स आफ्टर ट्यूसडे, आफ्टर मतलब बाद में, तो क्या आता है ट्यूसडे के बाद में, वेडनेसडे। ओके, तो पहले आप ये कंप्लीट कीजिए।
Okay, now number 3. Number 3. What comes after? What comes after Thursday? What comes after Thursday? What is your answer? क्या आता है थर्सडे के बाद में, बताओ मुझे. What comes after Thursday? Which day comes after Thursday? Friday. So our answer is Friday. 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 So what comes after Thursday? Friday. 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 Okay. Now write this. Number 4. On which मतलब कौन सा. On which day you enjoy your हॉलीडे. आप कौन से दिन अपना हॉलीडे एंजॉय करते हैं, बताओ मुझे. आपके स्कूल का हॉलीडे कौन से डे होता है, आपको पता है? अभी तो आपकी इस ईयर तो फुल ईयर ही हॉलीडे हो गया है, बट जब आपकी स्कूल लगती है प्रॉपरली तब आपको कौन से डे हॉलीडे मिलता है. फंडे कौन सा होता है आपके लिए? संडे. सो आप कौन से डे अपना हॉलीडे एंजॉय करते हैं? संडे. ओके. सो ऑन विच मतलब कौन सा. ऑन विच डे यू एंजॉय योर हॉलीडे. सो वी एंजॉय आवर हॉलीडे ऑन संडे. सो स्पेलिंग इज SUNDAY, संडे. ओके.
Okay, my dear lovely students, so today here we completed the concept of days of the week. So there are 7 days in a week. हमने ये भी पढ़ लिया है, हमने स्पेलिंग्स भी लिखी है, लर्न की है उनको, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस उसके बेस पर किए हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसके पहले कौन सा दिन आता है, किसके बाद कौन सा दिन आता है, आप अपना हॉलीडे कौन से डे एंजॉय करते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए डेज ऑफ द वीक में। Okay, so here I conclude my chapters, today's concept. Okay, so you enjoy yourself also, you complete your notebook and keep safe of yourself. Use mask, don't keep your hands here and there after touching anything. Always use sanitizer or wash your hands properly with soap and water. Don't touch your eyes, your nose and your mouth again and again. After eating and before eating, always wash your hands properly. Okay, bye bye. Have a nice day.